देश में 75 साल में पहली बार देश का रुपया डॉलर के मुताबिक गिरकर 77 रुपया 41 पैसे के निचले पायदान पर पहुंच गया है। 75 साल में पहली बार देश का रुपया आईसीयू में है और भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल की आयु को भी पार कर गया है। प्रधानमंत्री की आयु को पार तो कर ही गया। 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, देश में चारों तरफ महंगाई की हाहाकार है। पेट्रोल डीजल हो, खाने की वस्तुएं हो, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है और देश की अर्थव्यवस्था पर से विश्वास टूट रहा है। दूसरा कारण, देश में जो विदेशी निवेश आता है आने की बजाय देश से निवेश भाग रहा है, वापस जा रहा है। और उसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, चौतरफा भ्रष्टाचार। दूसरा, पॉलिसी पैरालिसिस। तीसरा, धर्म के आधार पर बंटवारा और देश में व्यापक अशांति। और चौथा, जो भारत सरकार ने और प्रांतीय सरकारों ने बेतहाशा कर्जा ले लिया है, उससे उनकी वित्तीय स्थिति खराब है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू रुपये के गिरने का है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी। देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मार्च और अप्रैल के 15 दिनों में 604 अरब डॉलर से गिरकर 536 अरब डॉलर रह गया है। केवल एक पखवाड़े में 15 अप्रैल तक एक हफ्ता अगर मैं बताऊं तो 31 करोड़ डॉलर का निवेश हिंदुस्तान से बाहर चला गया। 25 मार्च से 8 अप्रैल तक 3 से 5 करोड़ डॉलर देश से बाहर चले गए। देश में निवेश आने की बजाय देश का पैसा और विदेशी निवेशकों का पैसा भी देश से बाहर जा रहा है। तो महंगाई, फ्लाइट ऑफ कैपिटल यानी पैसे का बाहर जाना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कम होना, ये तीनों बहुत चिंता की बात हैं। रुपया आईसीयू में है और भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार केवल हिंदू मुसलमान टकराव पैदा कर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है। क्योंकि जिस देश में अशांति का माहौल होगा, जिस देश में नफरत का वातावरण होगा, जिस देश में धार्मिक टकराव होगा, जिस देश में पॉलिसी पैरालिसिस होगा, जिस देश में चौतरफा भ्रष्टाचार होगा, जिस देश में महंगाई की मार होगी, उस देश का रुपया बढ़ेगा कैसे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था पर, इस देश की जनता के रुपये पर आक्रमण बोल रखा है और उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। I will say it very briefly in English for my friends in the South India country. In an unprecedented fashion, for the first time in 75 years history of India, Indian rupee has fallen to an abysmal low of rupees 74.41 paisa to a dollar. Sorry, let me repeat myself. In an unprecedented fashion, Indian rupee has fallen to an abysmal low of rupees 77.41 paisa to a dollar. Never has this happened in 75 years. Under Modi government, Indian rupee is in ICU. Under Modi government, Indian rupee has crossed the age of Margdarshak Mandal of BJP. Under Modi government, Indian rupee has fallen even beyond the age of Honorable Prime Minister. And what are the reasons for the same? There are 3 apparent reasons. Number 1, runaway inflation. Life has become unbearable and expensive. Whether it is petrol, whether it is diesel, whether it is cooking gas, whether it is CNG, PNG, whether it is eatables, everything has gone beyond the reach of the common people. Secondly, there is immeasurable flight of capital from India. And the reason for that immeasurable flight of capital is BJP-sponsored communal tension across India, rampant corruption in BJP-ruled states, the insurmountable debt of Government of India and the states because of which confidence of the investor has gone, and the cost of doing business in India has gone up manifold. Third and another more important reason,
and a matter of concern is the depletion of foreign exchange reserves. The foreign exchange reserves, even over a fortnight or so, have gone down from 604 billion to 536 billion US dollars. Only in one fortnight, the foreign exchange reserves have depleted by nearly $31 billion. How will the economy of the country sustain itself when government is sponsoring communal divide, polarization and tension and an atmosphere of hate? Why should anybody invest here? And that's why flight of capital is happening. Foreign exchange reserves are going down and runaway inflation is hitting at every aspect of our economy. Any questions, you're welcome to सर, ask. आपने कहा देश का माहौल खराब हो रहा है। बुलडोजर की जो राजनीति शुरू हुई आज की दिल्ली में जारी है, शाहीन बाग वह बुलडोजर चला रही है, किस तरीके से देखा जाए? आदरणीय मित्र, नफरत की राजनीति, धार्मिक बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुसलमान विवाद की राजनीति, बुलडोजर की राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चला दिया है। देश के रुपये पर अपनी तोड़ने वाली सोच के चलते भाजपा ने बुलडोजर चला दिया है और नतीजा ये है कि $1 के मुकाबले में 75 साल में पहली बार अब हिंदुस्तानी रुपया, हमारा रुपया गिरकर 77 रुपया 41 पैसे हो गया है। जो 75 साल में नहीं हुआ, मोदी जी ने वो अब कर दिखाया। 75 साल बाद रुपये की कीमत 77 रुपया 41 पैसे $1 के बराबर रह गई है। रुपया आईसीयू में है और दम तोड़ रहा है। मार्गदर्शक मंडल की आयु को पार कर गया है। प्रधानमंत्री की आयु को कब का पार कर चुका। आखिर में लोग जिएंगे कैसे और देश की अर्थव्यवस्था बचेगी कैसे? सवाल ये है जो हर साथी को पूछना पड़ेगा। धन्यवाद। सर, आज जो मीटिंग हुई है उसके बारे में ब्रीफ किसने क्या सुझाव दिए? आदरणीय मित्र, हमारी मंत्रणा की चर्चा हम सार्वजनिक तौर से नहीं करते। अभी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है, उसके बाद बाकायदा जो निर्णय कांग्रेस कार्य समिति करेगी वो हम आपको सूचित करेंगे। पंजाब की तरफ से सर कोई ड्राफ्ट दिया गया, उतना तो आ गया पब्लिक डोमेन में। देखिए, पंजाब हरियाणा का विषय नहीं अकेले, ये विषय है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की बहदूदी और बढ़ोतरी का। कांग्रेस उस पर मंथन कर रही है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, जो निर्णय लिए जाएंगे मैं आपको अवश्य बताऊंगा। The entire purpose of the Chintan Shivar is to lay down a new path, as also to reform, as also to rise up to aspirations of people of India, as also to address when people like you who are enlightened citizens of India, they expect more of the Congress, from the Congress. We promise to you that we will do more, we will do better, and we will course correct if need be. But that has to come out of Chintan Shivar only. Thank you. सर, आपने जो अंग्रेजी में बोला उसी से जुड़ा सवाल है कि चिंतन शिविर में कांग्रेस एक नए रास्ते की तलाश करेगी। अभी हाल ही में आपने यही बयान भी दिया था कि कुछ लोगों से सुझाव भी पार्टी ने लिया था कि कैसे आने वाले वक्त में पार्टी और बेहतर करे, नए रास्ते पर जाए, जिसमें प्रशांत किशोर का भी नाम था। आदरणीय मित्र, क्या उनके सुझावों या बाकी लोगों के सुझावों पर भी चिंतन शिविर में संज्ञान लिया जाएगा, जिन लोगों ने भी सुझाव दिया पार्टी को? आदरणीय मित्र, आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है, उसमें चिंतन शिविर के एजेंडा पर विस्तृत चर्चा होगी और उसकी जो सहमति बनेगी उसके बारे में मैं अवश्य आपको बताऊंगा। पर चिंतन शिविर का उद्देश्य था कांग्रेस में अपने आप में तब्दीलियां लाना, वो तब्दीलियां जो लोग हमसे चाहते हैं, वो तब्दीलियां जिसकी लोगों को हमसे अपेक्षा है, और एक और कारगर विपक्ष के तौर पर जनता के समक्ष जनता की आवाज उठाना, और ऐसा हम करेंगे, ये हमारा संकल्प है। इसलिए चिंतन शिविर का नाम ही नव संकल्प चिंतन शिविर है।